ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾ बात नहीं है क्या? पीर साहब दसना वो पीर साहब पीर साहब बात को आगे बढ़ने दें, आराम कोई से बात बात नहीं। करो आमिर वो नजीर। पहली दफा की बात है। औरत काट तेरा मैं आज पीर साहब कोई नई बात है। पीर साहब आराम से बात करो। पीर साहब कोई नई बात नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ਇਸ ਆਸਤੀਨ ਦੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। नंगा मैं मैं दसना तुझे कर दूंगा, तुझे बांस करके छोड़ूगा। ਉਹ ਬਾਂਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ तेरे में बांस करके जाऊंगा। ਚੱਲ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਕਚਰਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ? ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਲਈ ਹੈ ਨਾ आमिर भाई ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ। पीर साहब एक पीर साहब एक मिनट। ਇਹਨੇ ਬਕਵਾਸ ਕਾਫੀ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਕਾਫੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ पीर ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ साहब आप ਦਿੱਤਾ। खामोश हो जाए। ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦੇ। पीर साहब आप खामोश हो जाए। ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ पहले मैंने ਇਹਨੂੰ 10 ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਔਰਤ ਨਾਲ पहले मैंने ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ रिकॉर्डिंग है ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਉਮਰ ਨਵਾਬ ਦਾ ਪਤਾ ਦਵੋ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਜਾਣਦਾ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ, ਦੱਸ ਬਈ। ਓਕੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਕਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਸਬਰ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਓਏ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਣੇ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ। ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਬਰਾੜ ਲਾਈ ਹੈ? ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਤੂੰ ਜੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾੜ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਟੁਰ ਜਾ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਕਹਦੇ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਫੈਸਲ ਨੂੰ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਪਤਾ ਦਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਤਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਨਾਬ? ਦਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, किस वजह तो? ਇਹਦਾ जवाब दे। आप एक एक होके बात करें प्लीज। देखें उनको देखिए जी, सबसे पहले मुझे ये बताएं शार्प शूटर इसने ये ऐलान किया या नहीं किया? कौन सा ऐलान? बस हो गई ना गल, हुन जवाब ले लेना। इसने ये कहा कि मुझे इस औरत का पता दे, नहीं, इस औरत के बारे में मुझे बताए जो इसको जाती जानता हो, इसका घर बार जानता हो, जो इसको जानता हो, उसका पता दे। मैं आपको बताता हूँ, मेरी आमिर नजीर साहब से एक खफकी है इनके सामने, ये सामने बैठे, इनसे पूछ लें। इन्होंने ये पूछा था कि ये कौन है, यानी कि कोई ये रियल में कोई हकीकतन है बंदा या नहीं है। टिकटॉक पे नहीं पता होता कौन है कौन नहीं है। इन्होंने उस सेंस में पूछा था। इन्होंने ये नहीं कहा था कि मुझे एड्रेस तो मैं कनाडा जा रहा हूँ, तो मैंने कहा था कि हाँ मुझे पता है, मैं ज़ाती तौर पर उनको जानता हूँ। इन्होंने ये पूछा था कि कोई टिकटॉक पे लोग होते हैं, क्या इसको कुछ जानता भी है कि औरत कौन है कौन नहीं है? तो मैंने कहा था हाँ मैं जानता हूँ, मुझे एड्रेस का पता है सारा। इन्होंने उस सेंस में पूछा था, ये नहीं कहा था कि मैं जा रहा हूँ कनाडा, मुझे एड्रेस तो। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਬਤਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸੀ ਨੰਬਰ? हाँ जी। ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਸੀ? अब वो चली गई हैं। ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ। अपनी बराड़ ਤੇ बदमाशी हो सकती है ना, सिर्फ अपनी बराड़ ਤੇ नीचे बैठो मेरे साथ बात करनी है, ओए फलाना कुत्ता फलाना बिल्ला, गालियां दे के अपनी बराड़ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਅਦਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਗੇ। ਆਓ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਫੁਰਕਾਨ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਇਹਦੀ ਝਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਸਕਾਨੀਆ ਅੱਜ ਪੇ ਖੇਡਦਾ ਨਾ ਔਰਤ ਕਾਰਡ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਔਰਤ ਕਾਰਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਾਸ਼ ਮਲਕ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਸੀ ਅਲੀਸ਼ਰ ਗੁੱਜਰ ਦੀ ਕਿ ਅਲੀਸ਼ਰ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਰ ਗੁੱਜਰ ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ। ਅਲੀਸ਼ਰ ਗੁੱਜਰ ਵੀ ਕਿਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਜਾਹਿਦ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਸਵੇ ਬਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲੀਸ਼ਰ ਗੁੱਜਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਅਲੀਸ਼ਰ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ, ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਗੁੱਜਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਜਕੂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਤੇ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਸਕਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਗੁੱਜਰ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਲ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕੋਲ ਅੰਬ ਲੈਣ ਗਈ ਸੈਂ, ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਐ? ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਤੇਰਾ ਤਵੱਕਲ ਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗਈ ਐ? ਆਏ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੇ ਬੁਲਾਣ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੈਠ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭਾਗ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆ ਟੁਰ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਬੁਲਾਓ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ 'ਚ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ? ਇਸ ਗੱਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਏ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਇੰਜ ਫਤਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇ, ਤੂੰ ਔਰਤ ਹੈ ਤੇ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਔਰਤ ਬਣ ਕੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇ, ਬਣ ਕੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇ, ਬਣ ਕੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰਦ ਸ਼ਾਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖੁਰਦਾ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਫਾਤੇ ਵੇ इमरान कालू। ज़िया भाई आपको उतारा किसने? एक मिनट, ज़िया भाई आपको किसने उतारा था? मुझे नहीं पता किस बंदे ने उतारा है, मुझे नीचे उतार दिया था। फिर उतारता किसी ने? कौन मॉडरेटर बनाया? यार मुझे चेक करना है, मैं ऑल मॉडरेटर रिमूव करता हूँ, एक मिनट। ठीक, ये रिमूव नहीं किए ऑल मॉडरेटर। सो ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਉਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਘੱਲ, ਤੇ ਘੱਲ ਕੇ ਇਹਨੇ ਡਿਲੀਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਉਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੇ ਘੱਲੀਆਂ, ਤੂੰ ਵੇਖ ਲੈ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਮੁਜਾਹਿਦਾ ਬਣੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦਾਂ ਨੂੰ, ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਹੀ? ਝੂਠ ਕਿਹਾ ਮੈਂ? ਇਹਨੇ ਕੱਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਫੇਵਰੇਟ 49 ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗਈ ਸਾਂ ਤੇ ਆਮਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗਲੀਜ਼ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੇ, आपने एक दफा कुरान हाथ मुझे च पढ़े उतार तो दिया, ये गल इसकी वजह से उतारना नहीं है। अगर पूछना जरा बदतमीजी करेगा तो मुंह तोड़ जवाब दे दूंगा इनको। कुरान हाथ 'ਚ फड़ के आख दिए गल या फेवरेट 49 की गवाही देगे? ऐसा नहीं कि जो भी इनके मुंह में आएगा बकवास करेगा हम सुन लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ जी शार्प शूटर साहब पहला औरत वाला काम मुका लो, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਕਰ। हाँ मुका लो, बाद में कर देंगे। ਇਹ ਆਸਤੀਨ ਦਾ ਸੱਪ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਹਾਂ ਕੱਢ ਗਾਲਾਂ, ਕੱਢ ਗਾਲਾਂ, रसूल को अपने पास ਰੱਜ ਕੇ ਕੱਢ ਗਾਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਲਣਾ, ਕੱਲਿਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ। अभी लगा मैं ਕੱਢ ਗਾਲਾਂ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੱਢ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ, ਮੇਰੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ, ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਲਣਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੱਲਿਆਂ ਕੱਢ। शर्म नहीं आता है? ਕੱਢ ਗਾਲਾਂ, ਕੱਢ रसूल ਗਾਲਾਂ, को बिठाते हो, ਕੱਢ ਗਾਲਾਂ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕੱਢ, ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੱਢ ਗਾਲਾਂ। वो तेरे चेलों ਤੇਰਾ ਗੰਦ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੱਟਰ ਉਬਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मैं लगा कुत्ते, मैं लगा कुत्ते। शाबाश शाबाश, ਇਹ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ, ਇਹ ਤੂੰ ਆਲਮ दीन है, ਇਹ ਤੇਰੀ ਤਾਲੀਮ है। मैंने कब कहा मैं आलम दीन हूं? ਇਹ ਤੇਰਾ ਇਲਮ है, आपको मुजाहिद ਇਹ ਤੇਰਾ ਇਲਮ है, ਇਹ ਤੇਰਾ आलम दीन होना है। और 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਵਹਾ, ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਵਹਾ, और ऊंचे बोल कुत्ते। शक्ल भी वहा। क्या शादी करानी है मेरी? हाँ हाँ कराने तेरी शादी। किससे शादी करानी है?
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। अपने एक बहन को ये कहते हो? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੋ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੋ। थूकना नहीं चाहता, तेरे थूकना सामने नहीं चाहता, तू है कौन? थूकना नहीं तू एक चाहता। कुत्ता है, तू एक ਹੁਣ कुत्ता तो है। झुकना नहीं चाहता, ना ना ना, समझ रहा है? मरना नहीं, सप खा के मरना नहीं मेरा भरा। आ जा मेरा भरा, नज़ीर, तू एक भाई है मेरा, कुछ भी नहीं ये है। भाई है मेरा, तू फितना कर रहा है, ये भाई है मेरा, ये गाली फितना देगा कर रहा है मुझे, चल मुसलमानों गाली दे, को। गाली दे मुझे, गाली दे, वो लोग जो गाली दे मुझे, भाई है मेरा, गाली देगा मेरा भाई, मुझे गाली देगा, और ऊंचा बोल, गाली देना, मेरा भाई है, मेरा भाई है, गाली दे। शात में रसूल थले और शेख हाथी ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, तेरी मदद करे, मरजाइयां ਨੂੰ ਬੁਲਾ, तेरी मदद करना, जिस तरह अपनी बराड़ ਦਿੱਤੇ। तुम्हें मसला क्या है अमर नजीर से, ज़िया रसूल से? अब बता मसला बता। ज़िया भाई ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, मैं कल्ला ही अगर निबड़ लांगा, मैं कल्ला ही निबड़ मर्दों के लांगा। सामने आके बता मसला क्या है तेरा। बताता हूँ। हमारी खामोशी को तुमने कमजोरी समझा हमारी? मैं तो तुमको पीड़ा भी नहीं कट गाल मैंने गाल कट, गाली दे, गाली दे। नीयत का पोल जो है ना खोला है तो तुम्हें आग लग गई ऊपर नीचे से, ये मसला है तेरा। मैंने मरजाइयों को साथ बिठा के गाली दे, क्या हुआ है? गालियां निकालनी है तो वो औरत कार्ड खेलने वाले, औरत कार्ड खेलने वाले मिर्जाइयों को बुला के उनके साथ मिल के गाली दो, बुलाओ। कौन मेरी बहन है, कौन मेरी बहन है? वो तो मिर्जाइयां दी भरजाई है, वो तो मिर्जाइयां दी भरजाई मेरी कदी बहन है। बहन को ये कहते हो? ओ मिर्जाई, ओ इदरीस कादियानी दे निकाह च, ओ इदरीस कादियानी दे निकाह च मेरी ओ बहन नहीं, तेरी बहन होगी, ओ तेरी बहन होगी। तू औरत कार्ड ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ, ਜਿਹੜਾ ਆਹੋ लेकिन मेरी बहन नहीं है, मेरी बहन नहीं है, मेरी बहन नहीं है, 7 साल का। तू कहता है मुझे तस्वीरें छुट्टी है, नहीं भेजिया ने, हो गया था वो, नहीं भेजिया ने तस्वीरें, पूछ अपनी बहन नु, तस्वीरें कलियां सुन के नहीं भेजी है, इसलिए भेजी है कि तूने फोन किया है, क्या मसला है? उसने तुम्हें वो तमाम चीजें फराहम की है, कुत्ते। ओ गल सुन, जेड़ी गलबात फोन कीता है, तस्वीरां दा ओदने की तल्लक है? कितना फोन तो किया था, अलीशर गुज्जर के लिए। हाँ बताता हूँ, फोन तो किया था अलीशर गुज्जर के लिए जी। उसके साथ इसकी तस्वीरों का क्या लेना देना? इसने अपनी तस्वीरें मुझे क्यों भेजी हैं? ये गाड़ी चला रही है विदाउट रूफ, उसको मैंने क्या करना है उस तस्वीर को मिसाल के तौर पर? अच्छा मैं बता देता हूँ, अब सुन लीजिए। आपने उनके फोन को नंबर कहाँ से ढूंढ लिया और क्यों ढूंढ लिया और क्यों उनसे इसका जवाब पहले दिया मैंने। क्यों दिया? मुझे बताओ। सुनो मैं बंदा उससे बात करता है, मुझे खुद उसने अपना नंबर इसके टिकटॉक के इनबॉक्स में सेंड किया, मैंने मांगा भी नहीं। मैं बताता हूँ जवाब, म्यूट लगा। इसलिए लिया था, शार्प शूटर से मैंने नंबर लिया था, और इसलिए लिया था क्योंकि ये मिर्जाइयों की बरात पर जाकर कह रही थी कि अली शेर गुज्जर ने मेरे साथ ज्यादती की है, जुल्म किया है, और ये खत्म नबूवत के मुजाहिद बने फिरते हैं, ये मुझे इंसाफ नहीं दे रहे। और मिर्जाई भी कह रहे थे आय हाय हाय हाय, औरत के साथ जुल्म हो गया, हवा की बेटी के साथ जुल्म हो गया, देखो इंसाफ नहीं कोई कर रहा खत्म नबूवत के मुजाहिद। इसलिए मैंने इसको कहा था, पहला मैसेज मैं अभी खोल के दिखा देता हूं, पहला मैसेज मैंने ये किया था, आओ हमारी बरात पर अली शेर गुज्जर वाला मसला हमें बयान करो, अगर अली शेर गुज्जर ने तुम्हारे साथ ज्यादती की है हम इंसाफ करेंगे, उसकी मजम्मत करेंगे, उसके मुंह पर उसकी ज्यादती माल देंगे अगर उसने तुम्हारे साथ किसी किस्म का जुल्म या ज्यादती की है, पैसे लिए हैं या इखलाकी तौर पर कोई तुम्हारे साथ ज्यादती की है, आओ हमारी बरात पर। इसने कहा मुझे इंसाफ अल्लाह देगा, ये मुझे जवाब दिया। मैंने कहा आओ मैं तुम्हें इंसाफ दूं अपनी बरात पर, मिर्जाइयों की बरात पर तुम्हें आके इंसाफ मैंने देना है, हमारी बरात पे आओ। कहती मुझे इंसाफ अल्लाह देगा। तो मैंने कहा अगर अल्लाह नहीं देना था तो मिर्जाइयों की बरात पर क्या लेने गई थी? वहां जाकर इंसाफ क्यों बहाल रही हो, वहां क्यों इंसाफ मांग रही हो? इसका जवाब नहीं है इसके पास। ये थी वो पूरी बात। हाँ जी, दो गाली। अभी आपने ये कहा क्योंकि वो मिर्जाइयों के ब्रॉड पे गई हुई थी और वो अपना कहानी जो भी उनके साथ जुल्म और ज्यादती है वहां शोर शराबा कर रही थी कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। अब आपने सोचा कि आप इंसाफ दे देंगे, यही सोचा ना आपने। फिर आपने नंबर ले लिया और आपने फोन किया, उन्होंने आपसे गुफ्तगू की और वो तस्वीरें और वो प्रूफ आपको इसलिए दे दिए। आप अपने ब्रोड पे बैठ कर ये कहते हैं कि मुझे तस्वीरें दी। अब आप खामोश रहिए ना, आप खामोश रहिए ना, आप खामोश रहिए, मेरी बात सुनिए, नाजायज फायदा मत कीजिए। बोले अब आपने खुद उनसे राब्ता किया इंसाफ दिलाने के लिए। एक इंसान पर जब जुल्म होता है वो तो चीखता है, इधर उधर की बातें करता है, उसके उस जुल्म और इंसाफ को देखकर सीधा इंशाल्लाह। अच्छा, अब वो शोर शराबा कर रही थी, आपको लगा, आप जो है गए उनके पास दयालु बनकर, अच्छी बात है।
आपने उनसे बात की, उसने वो तमाम प्रूफ आपको पेश किए। अब आप आएंगे बरोड पे, जब कोई भी मसला हो जाएगा आप आएंगे, जो बात उसको काट के पेश करेंगे, ये आपके लिए अच्छा है? उम्र के इस पड़ाव में क्या आप ये नहीं कह सकते थे कि मुझे वो प्रूफ दिए हैं? वो तो प्रूफ दिए हैं आपको, या कोई ऐसी तस्वीर दी है, या कोई ऐसी गंदी बात आपसे की है, कोई रिश्ता आपने जोड़ना चाहता था। जिस तरह से आपने गुफ्तगू की है वो एक गाली है। आपने उस चीज को गलत पेश किया, काट के पेश किया, ये आपकी गलत हरकत थी। बस ठीक है। अगर आपके साथ उसने कोई ऐसी बात की, कोई रिश्ते की बात की है, तो आप बता दीजिए, हम मलामत कर देंगे, जबकि ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात, वो अपनी बात खुद भी कर सकती हैं। शार्प शूटर उनको बुलाइए। आमिर नजीर जो कह रहा है, क्योंकि वो जानता है और अल्लाह जानता है, और आमिर नजीर जानता है, हमें नहीं मालूम। बुलाओ उनको आप बुलाइए और उनसे अच्छी बात कराइए। हाँ जी, खुद भागिए यहाँ बुलाइए। अच्छा यहाँ तक आपने बात को गोल करने की कोशिश की है कि वो आई थी। शेयर करें मुझे, उन्होंने व्हाट्सएप से हाँ कॉल कर लें, बल्कि मैंने पहले भी बात बयान की है। आमिर नजीर, एक मिनट आमिर नजीर, मैं उनको बुला लेता हूँ, एक मिनट। बुलाओ। हाँ, इस तरह आमिर भाई आप सही बात कर रहे हैं। आप पीर साहब आप भी आराम से बात करें, जो कंफ्यूजन आपस में वो दूर करें। और कंफ्यूजन किसी किस्म का नहीं है, कंफ्यूजन किसी किस्म का नहीं है। ठीक है आमिर भाई, बस आप बात करें ना। जो ये हैं इनकी असलियत सामने आ गई, लेकिन जो हमने सबूत देना है वो हम सामने देते हैं। वहाँ गालियां देते हैं ब्राड लगा के लोगों को। जी, अब बात कीजिए आमिर नजीर, बात कीजिए। मैं आया हूं, मैंने उनको कहा आने के लिए। हाँ जी सुने, मैंने ये कहा कि बुलाया तो था अली शेर गुजर के लिए। अगर वो आना चाहती थी ठीक, नहीं आना चाहती थी ना आए। व्हाट्सएप पर मैसेज करना शुरू हो गई, वो सबूत देना शुरू होगी कि देखो ये मेरे साथ अली शेर गुजर ने ज्यादती की। पर्चियां भेजनी शुरू कर दी कि उसने मुझे कहा था तुर्की से शायद पैसे भेजने के लिए, तो मैंने पैसे भेजे, ये किया वो किया। मैंने कहा भाई ये अब सारी वन वे स्टोरी है ना जो आप सुना रही हैं। जब तक अली शेर गुजर सामने ना हो, इन रसीदों की, इस सारी कहानी की ना हम तस्दीक कर सकते हैं ना तरदीद कर सकते हैं। हो सकता है सच्ची हो सकता है झूठी हो। वो चांदनी का किस्सा, वो उसकी बहन का किस्सा, भांजी का किस्सा, भतीजी का किस्सा, मैंने कहा भाई इन बातों से मुझे क्या लेना देना है। जो ज्यादती अली शेर गुजर ने की है वो हमारे सामने बैठो, अगर उसने ज्यादती की होगी हम उसके मुंह पे मारेंगे कि तुमने ज्यादती की है खातून के साथ, क्यों की है। इस दौरान इन्होंने अपनी तस्वीरें भेजी जिनका उस केस से कोई लेना देना नहीं। इसको बुलाओ अपनी बहन को और इसको कहो कुरान हाथ में पकड़कर कहे कि जो तस्वीरें इसने मुझे अपनी प्राइवेट भेजी उनके साथ अली शेर गुज्जर के केस का कोई लेना देना था। मिसाल के तौर पर एक विदाउट रूफ ये गाड़ी चला रही है, उसका अली शेर गुज्जर के केस के साथ क्या लेना देना कि अली शेर गुज्जर ने इससे पैसे मांगे या इसने उसकी कोई मदद की, उसका इससे क्या लेना देना है। अपनी तस्वीर, घर की तस्वीर, उसका इससे क्या लेना देना भाई। मैंने कहा क्या ये तस्वीरें भेज रही हैं, फिर डिलीट करना शुरू कर दी। मैंने कहा तस्वीरें डिलीट क्यों कर रही हो, कहती बस आपको दिखाने के लिए भेजी थी। क्यों भेजी मुझे तस्वीरें, मैंने तो कभी जिक्र भी नहीं किया। इसलिए जिक्र किया, ये जो आपको लगता है ना गाली दी है, ये गाली इसलिए दी है कि इसने मेरे भाई को गाली दी है। इसने कहा है कि ज़िया रसूल हारा है, तारक चौहान ने गलत फैसला दिया है, ज़िया रसूल हारा है, इमरान खान जीता है। ये उस गाली का जवाब दिया है मैंने कि इस कैलेबर की तुम औरत हो जो तुम इतना बड़ी बड़ी कर रहे हो ना, अपने आप को अक्ल कुल साबित करने की कोशिश कर रही हो, ये तुम्हारा कैलेबर है। तुमने मुझे तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी थी मेरी बगैर इजाजत के और बगैर कहे हुए, इसलिए मैंने जिक्र किया था और 8-10 महीनों बाद, साल बाद जिक्र किया था, वरना मैं कभी भी ना करता। इस नीच हरकत पर उतरना हमारे लिए मुनासिब नहीं है आप लोगों की खातिर। लेकिन जब आप हैं इस थड़ेबाज लोग, इस तरह के लोग हैं, तो आपको मजबूरन फिर जवाब देना पड़ता है, और वो दिया है। कहे आके हमारे सामने कि ये झूठ बोल रहा है, मैंने इसको तस्वीरें नहीं भेजी। कहे आके हमारे सामने कुरान पकड़ के कि मैंने फेवरेट 49 की बराड पे जाके कहा था जब ये गलीज औरत आपकी बराड पर हो तो मुझे ऊपर ना लिया करो, या फेवरेट 49 को यहां बुला लो, वो कुरान हाथ में पकड़ के दे दे गवाही, या ये दे दे, मैं माफी मांग लूंगा सबके सामने। कुरान पकड़ के हाथ में ये कह दे कि मैंने ये अल्फाज किया, या रिकॉर्डिंग पेश कर दे। रिकॉर्डिंग तो पेश नहीं कर सकती, 1.5-2 साल पहले कहा था भाई, 1.5-2 साल पहले कहा था। रिकॉर्डिंग तो अब भी उसकी होगी, मेरे ख्याल है फेवरेट 49 अपलोड करता है बराड पे अपनी बराड को। अगर ये वहां नहीं पेश कर सकती, वो रिकॉर्डिंग नहीं पेश कर सकती, कुरान हाथ में पकड़ के झूठ बोल दे। झूठ तो इसने पहले भी बोला हुआ है। ये कहती है कि इदरीस कादियानी कभी कादियानी था ही नहीं, ना वो था ना वो है। आओ इसको मेरे सामने बिठा के पूछो
इसका शोहर कादियानी है कि नहीं है? बुलाओ उसको मेरे सामने। नहीं आएगी। अच्छा, अब बहुत लंबी हो गई बात आपकी। सब तमाम चीज़ों को एक साथ आप बयान मत कीजिए, एक एक। देखें, आपने जब फ़ोन किया, उनसे बात की, उनको तो यही लगा ना कि आप इंसाफ करेंगे। और अगर उन्होंने कोई तस्वीर भेजी, मेरा सवाल सिर्फ इतना था, तस्वीर आपको इस खातिर भेजी है कि आप पर वो फिदा हो गई थी, या वो गलत औरत थे, कोई संबंध रखना चाहता था? अगर ऐसा नहीं है तो आप ये बात कैसे कर सकते हैं इस हिसाब से, जिससे ये लगे कि कोई संबंध रखना चाहता? तो ये तो गाली है। रही बात, आप ये दलील दे रहे हैं कि आपके भाई के बारे में उसने गलत बोला है। भाई ये गलत बात है नहीं, आप कहते हैं गलत बात है। बात ये है कि अगर कोई मुसलमान, फैसला तो चलेगा जज का, मेरी क्या औकात है, मैं कुछ भी कहूँ, किसी और की क्या औकात है? एक जब फैसला होता है आमिर नज़ीर, कुछ लोग उसके हक में होते हैं, कुछ लोग अपने सवाबदीद के हिसाब से कहते नहीं गलत हुआ है, इतनी सी बात है। पप्पू ने सारा कुछ कहा, मेरी आपकी लड़ाई भी चल रही थी, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि हक उसके साथ है। भाई मुझे यही लगा कि हक उसके साथ नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि हक ज़िया के साथ नहीं, दूसरे फरीक के साथ है, ये उसका मशवरा है, इस पे वो गाली देना नहीं बनता। आप ये कह दें कि भाई आपका काम ही नहीं है, आप गलत हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, इतनी सी बात है। ऐसी नंगी बात एक खातून के बारे में नहीं की जा सकती, इतनी सी तो बात है। और क्या है, उसके कहने से क्या बिगड़ जाएगा कि आमिर नज़ीर ज़िया गलत हैं, हक है किसके साथ? वो तलत के साथ। क्या हो जाएगा इससे? इस्लाम बदनाम हो जाएगा या ज़िया रसूल बदनाम हो जाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों को बोलने का हक है, लोगों को बोलने का हक दीजिए आमिर नज़ीर। ये गलत बात है। अगर आपके हक में कोई बात नहीं जा रहा, या आप समझते हैं कि ये बात उन्होंने गलत की है, गाली देना नहीं बनता है उम्र के इस पड़ाव में आपको। ये आपकी गलती है। एक खातून को आप गाली दे रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने आपके हक में नहीं बल्कि किसी और के हक में बात की है। ये कभी भी नहीं बनता। वरना आप मुझे ये बता दीजिए कि उसका वाक़ियतन जो आप बता रहे हैं, तस्वीरों के बारे में बता रहे हैं, ये तस्वीर इसलिए भेजी है, कोई गलत नीयत से भेजी है? और क्या आप समझते हैं कि कोई गलत खातून है, कोई बदकार खातून है? आप तो उसके इज्जतदारी कर रहे हैं, ये आपको ज़ेब नहीं देता। रही बात ये क्या नाम है अपना, 2 साल पहले आपने उनको गलीज़ कहा है, नहीं कहा है, जब तक प्रूफ सामने नहीं होगा आपकी बात तो दुरुस्त है कि हम मान नहीं सकते। वो कह रही हैं, आप कहते मैंने नहीं कहा, अब किसके हक में हम फैसला दे दें? हो सकता है कहे हो आपने, कोई शरीफ नफ्स इंसान यही कहेगा कि मुमकिन है कि कहा हो, कि मुमकिन है नहीं कहा हो। 4 आदमी कहेंगे भाई आमिर नज़ीर ऐसा नहीं कह सकता, 4 आदमी 2 आदमी कहेंगे नहीं कह सकता है। इस पे आपको गाली देना नहीं बनता कभी भी। ये आपका हक है, मुझे प्रूफ दे दो। जब प्रूफ नहीं है आपकी बात मैं नहीं मानता। बिल्कुल बात दुरुस्त है। ये बात तो आप कह सकते हैं, लेकिन किसी के मुंह पर आप मैक नहीं रख सकते, किसी के ऊपर जनाब आला आप पाँव नहीं रख सकते, और ये नहीं कह सकते, उसको गाली नहीं दे सकते। और वो है एक खातून, खातून के साथ इस तरह उनका मैंने क्या आपको मना नहीं किया था इनके बारे में? मैंने नहीं कहा था छोड़ दो? क्या ना मैं कई मर्तबा नहीं कहा है भाई आप मेरी बात मत माने, आप मत माने, लेकिन यह है कि दूसरे के बात को भी सुने, आप उसके साथ ना बैठे। कोई जाता है आप उसको जाने दीजिए। दूसरों को क्यों कहते हो, दूसरों को बदजन क्यों करते हो आमिर नज़ीर? क्या शरीयत के रूह से औरत दावत व तबलीग का काम कर सकती है या नहीं कर सकती? कर सकती है, शरीयत मना नहीं करता। हाँ, उलमा की नसीहतें हैं, उलमा की नसीहतें हैं, लेकिन वो तो शरीयत नहीं है। एक नसीहत, आप मुझे एक नसीहत करते हैं आसकानी साहब, इस रास्ते से मत जाइए, यहाँ चोरों चक्कों का रास्ता है, ये रास्ता ज्यादा महफूज है। लेकिन अगर मैंने आपकी बात नहीं मानी तो नुकसान मुझे होगा, मैं गुनहगार तो नहीं हो जाऊंगा, शरीयत तो मैंने नहीं तोड़ी। उलमा ने कुछ नसीहतें की हैं, आप नसीहत कर सकते हैं, लेकिन अपनी बात मनवा नहीं सकते और दूसरों को उसका दुश्मन नहीं बना सकते। जी
ठीक है जी। एक तो पहली बात जो इन्होंने कही है कि वो तस्वीरें उसने भेजी तो क्या उसकी नीयत खराब थी, क्या वो आप पर फिदा हो गई थी, क्या वो आपसे संबंध रखना चाहती थी, इनमें से कोई भी लफ्ज़ मेरा नहीं है। वो क्या चाहती थी मुझे मालूम नहीं है। जिन उलमाए कराम का अभी आपने जिक्र किया है कि उलमाए कराम इजाज़त देते हैं तबलीग की, उनमें से किसी आलम दीन से पूछ लीजिएगा अपने अलावा, क्योंकि आपका तो इल्म अब दुनिया ने देख लिया। किसी आलम दीन से अभी फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि एक खातून है, मुसलमान है या नहीं ये भी नहीं मुझे पता, लेकिन वो उसने मुझे तस्वीरें भेजी हैं बिला वजह, मेरे मांगे बगैर। वो दावत व तबलीग का काम कर रही है और मुझे वो तस्वीरें भेज रही है। उनकी इस पर क्या राय है? क्या एक खातून को अपनी तस्वीरें किसी मर्द को बगैर शरई यूज़र के भेजनी चाहिए, या अगर उसने भेजी हैं तो अच्छा किया है? शरीयत इसके बारे में क्या कहती है? उन्हीं उलमा से पूछ लीजिए, मसला हल हो जाएगा। मैं तो उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैंने सिर्फ इतना बताया कि ये हालात हैं इन लोगों के कि मेरे बगैर मांगे वो मुझे अपनी प्राइवेट पिक्चरें भेज रही हैं। अब सामने क्यों नहीं आ रही? आके कहे कि नहीं भेजी। मैं अभी स्क्रीनशॉट दिखाता हूं जहां भेजी हुई हैं, खुद डिलीट भी की हैं। तो ये झूठे लोग ये मुसलमानों की नुमाइंदगी करेंगे, ये मुसलमानों का खत्म नबूवत का काम करेंगे, ये मिर्जाइयों से बातें करेंगे और हमारा मुंह काला करवाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बात करेगी, दावत और तबलीग का काम करेगी तो क्या हर्ज है इसमें? तो इसीलिए मैं पसंद नहीं करता ऐसे लोगों को, जो लोग झूठ बोलते हैं, जो लोग बद किरदार हैं, जो लोग हेरा फेरी करते हैं बातों में, उनको मैं पसंद नहीं करता, उनके काम को मैं पसंद नहीं करता। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी के काम को पसंद नहीं करता, वो मेरे काम को पसंद नहीं करता, वो अपने घर में अपने घर, इससे कोई झगड़ा नहीं है। मैंने अगर किसी मुसलमान भाई को ये कहा हो कि इस औरत की बरात पर ना जाओ, ये मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकती, अपने भाइयों को अगर कहा हो तो इसीलिए कहा होगा, और मैं इस पर अब भी कायम हूं कि ऐसे लोग मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकते, मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। तो अच्छा कहा, इसमें तो कोई गलत बात नहीं कही है। बाकी रही बात ये कि वो जो आप कह रहे हैं भाई पैसों की बात कर रहे थे, कौन सी बात, तीसरी बात की? अच्छा, एक बात इन्होंने कही जी, वो उसकी तस्वीरों के बारे में कौन सी बात यार कर रहे थे? इतनी बातें कर दी हैं, मिक्स कर दी हैं बातें। हम तो मिर्जाइयों के साथ बात करते हुए आपने बातों को मिक्स किया ना, मैंने पूरी बात एक बात कर ले, कोई एक बात कर ले, इसीलिए मैं कहता हूँ कोई एक बात कीजिए। हाँ, अब एक बात करें, एक ही बात, ये दो बातें मैंने रखी हैं। हाँ। मेन बात पूछ लें कि इनको मेन मसला क्या है, बस। नहीं छोड़ दे, मसला इनका जो है वो ठीक है, इनका मसला रहना चाहिए, इनका मसला दूर नहीं होना चाहिए। हाँ, तस्वीरों का मसला हल हो गया, इसने भेजी है तस्वीरें मुझे, नहीं हुआ। ये अपनी ब्राड लगा के ये इनको मिर्जाइयों को लेकर साथ बिठा के मुसलमानों को गालियां देगी, मैं इसको आस्तीन का सांप कहूंगा। इसी तरह से कोई और भी होगा जो भी ये हरकत करेगा, मैं करूंगा, मैं भी वही हूं, आस्तीन का सांप। बुरा लगे, अच्छा लगे, करें जी बात। कि आप जिसको जो चाहें कहेंगे, तो हम आपको कुत्ता कहेंगे, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, इसमें क्या परेशानी है? फिर ये आपके जो साथी हैं आते हैं गालियां देना शुरू कर देते हैं तुम्हारे सामने वो ये कहते हैं कि उम्र रबाब की शादी हम कर रहे हैं किसको? आसकानी के साथ। क्या ये ऐसे इंसान, ये कोई तुमने कोई दीन सीखा है? तुम कोई दीनदार इंसान हो? अपने जाती मफाद के लिए लोगों के उसमत ज़दी कर रहे हो ख़वातीन की, और आस्तीन के सांप किसको कह रहे हो? मुसलमानों को। मुसलमान नहीं है तू, सबसे बड़ा मुसलमान है तू, एक कुत्ता है। क्यों? तू मुसलमानों को निकाल रहा है, तू समझता है दुनिया का आखिरी इंसान, आखिरी फहम मेरा है। मेरे तेरे फहम जिस तरह से आप कहते हो मेरी जूती के नोक पर, मैं तेरी फहम को नहीं मानता। वजह यह है कि तू मुसलमानों के मोहब्बत का नाजायज फायदा उठा रहा है, झूठ बोल के, हेरा फेरी करके उनको बदनाम कर रहा है। जो बात होती नहीं वो बात तुम कर जाते हो। अभी आपने कहा कि मैंने तेरा फहम देखा है, कि मैंने ये कहा इस्मो अहमद का, मैं कुछ और समझ रहा हूं। मैंने क्या कहा था वो पूरी बात तो कीजिए। यही तुम्हारी बात है, इसी बातों को देखकर यही तुम्हारी हरकतें हैं। यानी तुम इतने उम्र के इस पड़ाव में एक खातून का जब तुम इज्जत नहीं कर सकते, तुम दीन का काम कैसे कर सकते हो?
अपने गैस खारिज करने के लिए तुम आते हो आमिर नजीर। हकीकत यह है, अगर आपको वाकईतन दीनदार होते और वाकईतन आप दीन को समझते, कभी भी किसी खातून को आप गाली नहीं देते। आप कहते हैं मैंने ये कह दिया कि तस्वीर जो निकाले, भाई मैं यही निकाल रहा हूं कि तू ये कह रहा है आमिर नजीर, तू ये कह रहा कि तुझ पर फिदा हो गया है। क्या तू ये किसी खातून को कहने से पहले तुझे मरना नहीं चाहिए? तुम्हारे मॉडरेटर मुझे उतार रही है।